Okay, so today we are going to discuss the PLCs और PLC start करने से पहले currently we are covering chapter 8 और chapter 8 का हम लोगों ने जो topics तक cover कर लिए हैं we have covered till 8 points. We'll be starting topic 8.4 from today onwards. For this particular topic, जो 8.4 से आगे covered है, I may not be following book completely, but this doesn't mean that you should not go through the contents of the book. So 8.4 onwards is all PLC operation, how we design the ladder programming और कौन से components हैं जो involved होते हैं. So let's start with what the control relays are. Control relays are basically just a switch. ठीक है, जैसे for example for this particular diagram that you are seeing currently, एक मोटर है जिसको हमने और मोटर को करने के लिए यू नीड टू हैव हाई पावर्ड स्विचेस. नॉर्मल जो स्विचेस होते हैं वो वर्क नहीं करते, विच इज व्हाई यू नीड टू हैव हाई पावर्ड स्विचेस या रिलेज यूज होती हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर. सो यूजिंग रिलेज to and switch to start a motor is what from where this concept arose. So we have a switch S1. Here is a switch और when this switch is closed और यहाँ पर साथ एक रिले लगी हुई है, अगर ये स्विच जो है वो क्लोज्ड होगा तो आपका जो है वो सर्किट जो है वो वर्क करेगा. प्लस यहाँ पर आपके एक और स्विच भी अटैच्ड है जिसको हम नॉर्मली क्लोज्ड, NC रिप्रेजेंट्स नॉर्मली क्लोज्ड, उसको हम कहते हैं normally closed. So these are the two terms that are going to be used quite frequently here. So this is normally open. NO represents normally open and NC represents normally closed structure. So जब आपकी रिले जो है उसका स्विच बंद होगा and plus this connection here is also set, तो तब जो है वो मोटर आपकी start होगी. So this is the basic concept of the control relays, just the high powered switches which are able to drive systems such as motors and plants etc. ठीक है, तो in short हमने switching design करनी है, which is why it's related to the discrete process control. You need to switch between different states. या तो मोटर ऑन होगी या मोटर ऑफ होगी और उसको ड्राइव करने के लिए हम रिलेज का इस्तेमाल करते हैं. So we have a normally closed and normally open buttons. कुछ buttons जो हैं वो by default आपके पास normally closed पे ऑपरेट करते हैं और कुछ buttons जो हैं वो आपके पास by default normally open पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. Think of it as just like कि आपके पास जो है या तो logic high पे आप काम कर रहे हैं या आप logic low के ऊपर काम कर रहे हैं. So for some circuits it is preferable that आप logic low के ऊपर काम करें और some पे it is preferable कि you go for the high ones. Then इसको थोड़ा सा हमने इसी डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा इनहांस करें and we say कि now we have a circuit which is meant to drive two lights. हमारे पास दो lights हैं, एक red है और एक green है और we have push buttons. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, for these diagrams so you have to refer to use symbols to represent different types of switches. For example, for this particular case, जब आप एक switch को डिजाइन कर रहे होते हैं तो this is the circuit. ठीक है, आपको यूं sorry. So in this case you have to use a switch. और अगर आपने पुश बटन करना है तो पुश बटन के लिए जो इस्तेमाल होता है सिंबल, इट इज दिस. So for the push button switch के लिए this is the symbol and for the push button you need to have a symbol which is this. So you need to keep track of the symbols as well here. Kindly अपने mics mute कर लीजिए.
It's a little difficult for me to mute you all over and over again, and it creates disturbance in the class. So please make sure everybody is muted here. किसी का कोई question है तो you may raise your hand and we can proceed. Okay, am I audible now? Yes, ma'am. Okay, I think I accidentally muted myself as well. तो इसलिए please make sure when you join your mic is muted ताकि मुझे बार बार जो है वो disrupt ना हो. Anyways, where were we? हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कंट्रोल रिलेज. ठीक है, सो कंट्रोल रिलेज सिंपली स्विचेस हैं, सिर्फ हाई पावर्ड स्विचेस हैं और हम उनको यूज करते हैं टू ड्राइव डिफरेंट सर्किट्स और डिफरेंट सीक्वेंसेस. और अगर पूरा कंट्रोल सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिलेज तो इस सिस्टम को हम रिले सीक्वेंसर कहते हैं. सो रिले सीक्वेंसर कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिलेज जिसमें कुछ टाइम डिलेज हैं, कुछ काउंटर्स हैं, सम आर वायर्ड अप एंड सम for some you specify the sequence of events. Inputs हमेशा जो हैं वो switches हैं और push buttons हैं जो कि relays को energize करते हैं, and outputs are close contacts that can, for example, it could be a light, it could be a motor, it could be a solenoid and so on. So there's a set of inputs and then there's a set of outputs as well. Combine करना. So if we start off with relays, so a relay coil is represented by a circle identified as CR. ठीक है, तो रिले को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसमें आप CR का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, एंड इट इज and an associated identifying number. For example, you may have more than one relay coils in your system. So you need to give a unique identifier to each and every one. So CR1, CR2, CR3, and so on. Contacts for that relay may either be normally open or normally closed and can be identified by the same number. अगर आपका नॉर्मली क्लोज्ड है सो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं स्पेशली जो सॉफ्टवेयर में भी आपको यूज होगा, इट इज दिस, ये जो ऑन टॉप इज लिस्टेड हियर. सो दिस रिप्रेजेंट्स द नॉर्मली क्लोज्ड स्ट्रक्चर. तो इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन जिसके बीच में आप दो पैरेलल लाइंस लगाते हैं और फिर उसको क्लोज कर देते हैं. एंड नॉर्मली ओपन इज दिस, सिंपली दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको हम नॉर्मली ओपन से रिप्रेजेंट करते हैं. The contacts for that relay will either be normally open or normally closed. ये डिजाइन करते हुए आप रख रहे होते हैं. अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज 1 तो आप उसको नॉर्मली ओपन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड इफ इट इज स्टेट 0 तो उसको नॉर्मली क्लोज से रिप्रेजेंट किया जाता है. A normally open contact is one that is open when the relay coil is not energized and become closed when the relay is energized. तो normally open का मतलब ये है कि अगर relay energize नहीं हुई भी, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी coil is not energized तो स्विच जो है वो ओपन होगा, और स्विच को क्लोज करने के लिए आपको रिले को एनर्जाइज करना पड़ेगा. वेयर एज फॉर द नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट अगर रिले कॉइल एनर्जाइज नहीं है तो ये स्विच आपके पास क्लोज्ड फॉर्म में होगा and it would open once the relay is energized. So it's just the opposite of each other. So these are the symbols. CR1 से इसको वैसे generally represent किया जाता है, it's a coil, और then it's normally open or normally closed. So these are the symbols that are used to represent the relays. Then these relays may be time delayed as well. For example, आप हो सकता है कहें कि after 10 seconds the switch should be
turned on or this motor should be turned off, let's say. So this is known as a time delay relays, and normally open to close after delay or normally close to open. दोनों cases में आपके पास options हमेशा exist कर रही होती हैं. For the time delay relays, the symbols that we use to represent are as flashed on screen, और इन्हीं symbols को हम अपनी ladder diagram में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Then हमारे पास there are some outputs, और outputs को भी हमें represent करना है. So for motors, if it's a motor, तो it's a simple circle जिसको हम unique identifier से represent करेंगे. For example, it could be motor 1, M1, M2, M3 and all. If it's a solenoid, तो उसको हम इस sign से represent करते हैं. It's its exact sign. And if it's a light, तो it's represented by the circle, and the specific circle से represent किया जा रहा होता है. So just few symbols that are used for when we are designing. Then we have switches, and the symbols for push button switches are these: PB1, PB2. Again, unique identifier उसके साथ होना चाहिए. So this is PB1, and this PB1 is also both normally open and normally closed. So this represents a normally open push button, and this represents a normally closed push button. Similarly, आपके पास कुछ limit switches भी होते हैं. For example, limit switches are used to detect physical motion limits within the process. If you remember, तो last time जब हम feeder का हमने process discuss किया था, तो वहाँ पे limit switches का इस्तेमाल हुआ था कि जैसे ही आपके पास एक डब्बा आता है, तो limit switch detect करता है कि the box is here and it is stopped. और फिर आपका जो है वो फीडर उसके अंदर खाना भरना शुरू हो रहा था. So if it's a limit switch that you are using, तो उसका symbol जो है, it is this is normally open limit switch structure, and this is normally closed structure. जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मली ओपन स्विचेस को इस्तेमाल कर रहे थे और वो जब एनर्जाइज होती है रिले, तो वो नॉर्मली वो क्लोज हो जाता है, ठीक है. बट यू यूज ओनली द नॉर्मली ओपन कॉन्फ़िगरेशन इन योर डायग्राम, एंड इट इज अंडरस्टूड कि जैसे ही स्टेट चेंज होगी तो वो क्लोज हो जाएगा. Then we have pressure switches, which are also both normally open and closed. They are thermally activated switches, and then they are level switches. So all the kinds of sensors that are there, unke liye there are switches present which can detect a particular value. Motion ka ho gaya, pressure ka ho gaya, thermals ya level switches. And all these switches, the normally open is closed by rising the pressure, temperature or level. तो जैसे आप कुछ rise कर रहे हैं, the temperature is rising, the pressure level is rising, तो वो normally open से close में shift हो रहा होता है. अब this comes to the ladder diagram. How to implement the ladder diagram for these particular circuits. Ladder diagram में आपके पास generally software में भी हम देखेंगे, we start off by drawing two parallel lines. ठीक है. So these are the two parallel lines जिनको हम rails कहते हैं. So these two parallel lines are known as rails. और इट्स जस्ट और इसके ऊपर जो है वो हम डिफरेंट levels insert करते हैं. So if I'm inserting these different levels, let's say I'm inserting 3 different levels here, तो हर एक level को हम रंग बोलते हैं. So it's रंग. So I've inserted actually 3 rungs in this particular diagram. और ये जो rungs का आपको यहाँ पे sequence नजर आ रहा है, the sequence is based on के what is the priority 1, what is priority 2 and what is priority 3 for this particular structure. अब let's say हमें एक ladder diagram बनानी है जिसमें we want to represent the circuit that is shown to you, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसकी लेटर डायग्राम इंसर्ट करनी है. सो वी हैव टू स्विचेस. एक हमारे पास पुश बटन 1 है, पुश बटन 2 है, अगर एंड देयर इज अ रिले व्हिच इज अटैच्ड टू इट. पुश बटन 1 इज नॉर्मली ओपन एंड पुश बटन 2 इज नॉर्मली क्लोज्ड, व्हिच मींस के अगर आपकी रिले एनर्जाइज होगी तो पुश बटन 2 जो है वो आपके पास यहाँ से इस कनेक्शन को थ्रू करेगा, एंड इफ इट्स द अदर वे अराउंड तो पुश बटन 1 जो है इट शुड एनर्जाइज योर लाइट्स. तो 2 लाइट्स हमने यहाँ पर ऑन करनी है. लेट्स सी कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर डायग्राम क्या होगी.
is the corresponding ladder diagram that we would see here. एक तो ये कि relay is connected to both PB1 and PB2, which is why you need to have both in connection with each other. So दोनों में से अगर कोई भी आपके पास एनर्जाइज हो रही है तो आप या पुश बटन अगर प्रेस हो रहा है तो CR1 इज देयर, वो एनर्जाइज हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अच्छा, और यहाँ पर इट्स एन एंड configuration that you are seeing at the moment, although दोनों switches opposites हैं, but अगर तो पुश बटन 1 जो है वो आपके पास, आप इट्स नॉर्मली ओपन एंड पुश बटन 1 इज नॉर्मली क्लोज्ड. सो इफ आई रिले एनर्जाइज होती है सो इट वुड बी कनेक्टेड, नॉर्मली क्लोज हो जाएगी. PB1 बाय डिफॉल्ट पहले से ही लॉजिक मतलब क्लोज्ड है और आपकी जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी. एंड इफ योर रिले इज एनर्जाइज्ड विच मीन्स के अगर एनर्जाइज का मतलब ये है कि नॉर्मली इसको हम ओपन को, सो दिस नॉर्मली ओपन कॉरेस्पॉन्ड्स टू लॉजिक 1 एक्चुअली, बाय डिफॉल्ट हम इसको ऐसे लेते हैं. एंड इफ इट इज दिस, तो दिस इज लॉजिक 0. तो या आप समझ लें दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ स्टेट. यू कैन ऑल्सो परसीव इट दैट वे. तो अगर तो रिले आपकी एनर्जाइज हुई है तो आपकी रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो रही होगी, ठीक है. सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर रेड लाइन. वंस दिस CR इज ऑन, तो यू वुड लाइक इट टू रिमेन ऑन रिगार्डलेस ऑफ द पुश बटन, ठीक है. एक और चीज हम कहते हैं कि लेट्स से आपने एक स्टार्ट का बटन दबाया और स्टार्ट का बटन दबाकर बिकॉज ऑफ स्प्रिंग सेटिंग क्या वो एक दफा बस ऑन किया और उसके बाद वो दोबारा से आपके पास ऑफ हो जाता है. बट आपकी यू डोंट वांट कि आपकी मोटर बंद ना हो, ठीक है. सो यू वांट योर मोटर टू कीप ऑन रनिंग, विच इज वाई एक यहाँ पर पैरेलल में CR1 को भी डाला हुआ है, विच सिंपली मीन्स कि अगर वंस CR1 इज रिले एनर्जाइज्ड है तो बार बार पुश बटन 1 को प्रेस करने की जरूरत ना पड़े. एंड सिंपली अगर आपने PB2 को यूज करना है तो तब भी जो है वो CR1 एनर्जाइज होती रहे. द सेकेंड ऑप्शन इज कि ग्रीन लाइट ऑन करनी है, और ग्रीन लाइट ऑन करने के लिए यू नीड टू प्रेस द पुश बटन 2. एंड पुश बटन 2 को जब आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हेन इट इज मतलब जिसका मतलब ये है कि ये 0 से 1 की स्टेट में जा रहा है. एंड इफ दिस इज द केस तो फिर आपके पास जो है वो रिले एनर्जाइज नहीं होगी और वो आपके पास ऑफ हो जाएगी, ठीक है. सो दिस रिले इज गोइंग टू बी टर्न ऑफ क्योंकि ये इसको दोनों हाई चाहिए फॉर दिस एंड सर्किट टू वर्क. आई विल एक्सप्लेन कि हम इंडिविजुअल गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट जस्ट अगर देखा जाए तो दिस सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में जब भी दो चीजें कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम एंड गेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. सो विच मीन्स दैट बोथ has to have to be turned on. So in this case, since PB2 अब आपने यूँ समझ लें कि चेंज किया उसकी स्टेट, उसकी वजह से रिले चार्ज नहीं हुई है, रिले इज टर्न्ड ऑफ, एंड इफ द रिले इज टर्न्ड ऑफ तो उस केस में ग्रीन लाइट आपके पास ऑन हो रही होगी. सो यू टॉगल बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दोज डिफरेंट वैल्यूज आप अपनी दो लाइट्स को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं. So this is what this simple ladder diagram is representing. Any questions so far? किसी का यहाँ तक कोई सवाल है? No, ma'am. Okay. Let me share the other presentation then. So this is simply the ladder diagramming, an introduction to the ladder diagramming. We'll see in detail how these circuits are implemented. Lekin just an overview of what ladder diagram would be. Okay, I hope chapter 8 programmable logic controller slide is visible to you all. Is it? Yes, ma'am. Visible. Okay.
अच्छा, कमिंग टू द PLCs, हमने डिस्क्रीट प्रोसेस कंट्रोल तो स्टडी कर लिया. वी हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट डिस्क्रीट में आप कैसे कंट्रोल्स को डिसाइड करते हैं. आपको डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिसाइड करना है, डिफरेंट चीज़ों को ऑन करना है या ऑफ करना है, टाइम्ड करना है, काउंट करना है, एंड multiple things that you may do in the discrete control. For the PLCs, एक तो थोड़ा सा brief review of the PLCs, then the concept of discrete control manufacturing, review various kinds of instrumentation, and then overview of the ladder logic programming. This is what we want to discuss. Starting with the types of control, there are three general types of control in the again discrete में हम जिसको देखते हैं. वन इज द टेम्पोरल कंट्रोल, जिसमें आप कंट्रोल बेस्ड इन टाइम करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आफ्टर 5 मिनट्स ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए, आफ्टर 10 मिनट्स गो टू दिस. देन देयर इज अ स्टेट, जिसमें कंट्रोल बेस्ड इन स्टेट लेवल होता है, जिसका मतलब ये है कि इफ द लेवल हैज रिजन टू हाई, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने एक और चीज को इनिशिएट करना है, और या वॉल्व लेट्स से खोलना है, और इफ द लेवल इज लो तो आप अपना वॉल्व जो है वो बंद कर रहे हैं. एंड देन देयर इज हाइब्रिड, व्हिच मींस वी हैव बोथ टेम्पोरल एंड स्टेट एज वेल, जिसका मतलब ये है कि इफ द लेवल इज हाई, open the valve for 10 seconds and then close it. And then again check if the level is again high, again open the valve for 10 minutes and then close. So this is where the hybrid part come in. So we'll be implementing the hybrid here. Coming to the objectives, we want to first define what the basic components of a PLC is, then to apply PLC-based control for manufacturing system, identifying measurements requirements, and to program PLC and to implement a PLC control program and hardware as well. So PLC stands for Programmable Logic Controllers, and initially इनको इसको यूज किया गया था टू रिप्लेस द रिले लॉजिक बोर्ड्स. अब रिलेज जो हैं लाइक डिस्कस्ड अर्लियर आर जस्ट हाई पावर्ड स्विचेस जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब विद द एडवेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द सॉफ्टवेयर्स, और एक बहुत बड़े मैश को, फिजिकल रिलेज को, स्विचेस को हमने रिप्लेस कर दिया विद PLC, जो कि वही काम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रही है. सो PLC आप समझ लें कि एक इट्स जस्ट अ बॉक्स विच हैज अ नंबर ऑफ इनपुट्स, और इनपुट्स वही हैं जो रिलेज की इनपुट्स भी होती हैं, विच मीन्स इट कुड बी पुश बटन्स, इट कुड बी लिमिट स्विचेस, बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं. और आउटपुट जो है वो इसकी कनेक्टेड है with the outputs that we defined earlier. It could be a motor, it could be a light switch, it could be a solenoid, और वो सब चीजें हैं. ठीक है, so this is essentially what a PLC is. PLC का काम सिंपली ये है कि बेस्ड ऑन द इनपुट्स इट इज रिसीविंग, वो एक कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट स्विचेस को. सो यू मे हैव मल्टीपल सिनेरियोज, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब डिस्क्रीट प्रोसेस कंट्रोल को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि देयर मे बी मैनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड, और उनको हमने फिर डिज़ाइन करने के 2-3 तरीके भी देखे थे. हम फ्लो चार्ट से भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, then we can represent them through Boolean equations as well. All of those were sequence of events that we have established कि ये occur कर सकते हैं. उन सारे sequences को हम PLC के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं. Okay, so PLC has a memory, and you put in all the instructions of different scenarios in the PLC, and based on the inputs now it is receiving, वो switching कर रही होती है. So it accepts input from a series of switches and send outputs to devices or relays. So it's just a box which is efficiently monitoring the switches between different elements. कंट्रोलर्स के जो फंक्शंस PLC में आते हैं, एक तो आपके पास ऑन ऑफ कंट्रोल है, विच मीन्स के यू आर आइदर शटिंग द मोटर ऑन और ऑफ. देन इज सीक्वेंशियल कंट्रोल, जिसमें आपने प्री प्लान रख दिया है कि दिस इज हाउ इट इज हैपन. फॉर एग्जांपल, फॉर अ वॉशिंग मशीन, आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो इसका एक पर्टिकुलर लेट्स से कि मैंने ब्लैंकेट मोड ऑन कर लिया है. अब ब्लैंकेट मोड प्री डिफाइंड है कि कितनी देर के लिए पहले पानी अंदर आएगा, फिर कितनी देर के लिए
उसके अंदर डिटर्जेंट आएगा एंड देन कितनी देर के लिए आपकी मशीन चल रही होगी, किस टेम्परेचर के ऊपर चल रही होगी. सो ऑल दीज आर डिफरेंट सीक्वेंसेस जिनको हम देख रहे होते हैं. Then there is feedback control, which means के let's say मोटर अगर एक on है तो उसकी basis के ऊपर if it's on then go for this, which means you have conditional statements involved, if else, or you are constantly taking feedback as well, जिससे आप levels को check कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अच्छा if the level is let's say 50 meters तो I have to go back, which means कि उसके लिए आपको एक level स्विचर लिमिट स्विच देखना, लिमिट स्विच तो नहीं बट एक लेवल स्विच रखना पड़ा होगा. देन देर इज मोशन कंट्रोल जिसमें लिमिट स्विचेस आ जाते हैं कि इफ दिस कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग तो तब आपने किस तरह प्रोसीड करना है एंड इफ इट इज स्टॉप तो फिर कैसे प्रोसीड करना है. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर्स दैट वी मे यूज. Mechanical control is cam, governor, etc. Pneumatic is compressed air, valves को हम control कर रहे होते हैं. Electromechanical में there are switches, timer, counters. फिर electronic control में आपके पास electromechanical control आ जाता है except electronic switches, and then there is computer control as well. So multiple areas जिसमें control devices को इस्तेमाल किया जाता है. So, coming to a brief history, it was invented in 1968 as a substitute for hard wired relay panels. मतलब बहुत बड़े बड़े relay panels लगाए जाते थे जिनको फिर replace कर दिया गया PLC से. एक it's a digitally operating electronic apparatus which uses programmable memory for the internal storage of instructions. So it has a memory जिसके अंदर आप अपनी instructions को store करते हैं specific functions की, such as जिसमें and which include logic sequencing, timing, counting, arithmetic to control through digital or analog inputs. The digital computer which is used to perform functions is considered to be within this scope. मतलब अंदर आप छोटी मोटी arithmetic operations भी perform कर सकते हैं. This simply means that. And excluded are drum and other similar mechanical sequences controller. Not exactly I don't agree with this क्योंकि जो आपके पास sequencer है वो तकरीबन एक drum की तरह ही यहाँ पर काम कर रहा होता है. ड्रम का सिंपली मतलब ये है कि इफ यू रिमेम्बर योर डेटा स्ट्रक्चर्स कोर्स तो वहाँ पर आप डिफरेंट तरह के ना लूप्स पढ़ते थे कि क्यूज को देखा जाता था कि अगर एक लेट्स से एक सीक्वेंस खत्म हो गया है तो it starts repeating itself again and again. So it's just a repetition of a particular sequence of events that is taking place. उसको हम drum के context में भी कहते हैं. So it's just like a drum which you are rolling और once the complete cycle is complete तो वो दोबारा से start हो जाता है. तो PLCs can do that as well. उसको हम sequences जब हम पढ़ेंगे PLCs में further तो we'll see how those are implemented. मुख्तलिफ तरह की PLCs exist करती हैं, which means के vendors, there are different vendors that uses different types of PLCs, and there is Rockwell, there is Schneider, there is GE, Fanuc और Siemens की भी आपके पास है. हम जो है वो आई बिलीव रॉकवेल के ऊपर काम करेंगे. सॉफ्टवेयर जो है वो आपके. So this is the internal structure for PLC. PLC के कुछ components are flashed here, and this is the general diagram of how a PLC would look like. So it has different panels जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. These are the switches जिसमें आप input और output दे रहे होते हैं. So there is an input module and there is an output module. So input module is connected directly to the CPU. You have a system, there is a memory, and then there is a ladder diagram. And obviously, as in any computers, there are different flags that are there as well, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं for making certain decisions. So they replace most of the relay panel wiring by using the software programming. So processor को जो input जाती है वो program loader से जाती है, printer से cascade roller, cassette roller loader, and then EEPROM loader. So processor जो है वो load करता है आपके different programmings को. There is a memory as well, there is a power supply, and जो IO modules हैं उसमें आपके पास switches और machines exist करती हैं.
सो प्रोसेसर जो है वो इसका इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मे अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यूँ समझ लें कि जो प्रोसेसर है इट्स जस्ट अ माइक्रो प्रोसेसर जो कि प्लेस्ड है, और लाइक आई सेड अर्लियर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म आराम से कर लेता है। मेमोरी आपके पास डिफरेंट तरह की मेमोरी एग्जिस्ट करती है, देयर आर रोम्स रैम्स पी रोम्स, बट हम इसको डिटेल में ही देखेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू से कि पीएलसी की मेमोरी में हमने एक पर्टिकुलर कोड जो है वो लोड कर दिया या स्टोर कर दिया, तो नो नीड टू गो इनटू देन देयर आर आईओ मॉड्यूल्स एज वेल, जिसमें आपके पास एसी डीसी दोनों तरह की इनपुट्स ये ले लेता है। देयर आर हाई लेवल एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट स्पेशल पर्पस मॉड्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यू नीड टू हैव अ पावर सप्लाई एंड पेरिफेरल्स में देयर आर CRT programmers, printers, simulators, etc. So just the input-output map. अगर हम डिवाइसेस की बात करें जो PLCs के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, so there are input relays, internal utility relays, counters, sequencers, timers. Those are some of the cases. Input relays क्या हैं? They are connected to the outside world. They physically exist and receive signals from switches, sensors. Typically, they are not relays, but rather they are transistors. तो स्विचेस को भी हम वी ऑल नो कि हम ट्रांजिस्टर से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि रिलेज पहले हार्ड इस्तेमाल होती थी पुरानी, और बड़े बड़े सेटअप्स होते थे, उसको हमने रिप्लेस कर दिया पीएलसी से, और पीएलसी जो है वो रिले का काम कर रही है। अब पीएलसी को इनपुट जो है वो स्विचेस के थ्रू आ रही है, सेंसर्स के थ्रू आ रही है, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ट्रांजिस्टर स्विचेस जो है वो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, वी ऑल नो दैट। सो दिस इज इनपुट रिलेज। कॉन्टेक्ट्स होते हैं फिजिकल कॉन्टेक्ट्स जहाँ पर आप इनपुट को दे रहे होते हैं। इंटरनल यूटिलिटी रिलेज, they do not receive signals from outside world, nor do they physically exist. They are simulated relays. इसका मतलब ये है कि जो आप अपनी सॉफ्टवेयर में रिलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, दोज आर दैट दे आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द जो आपको इनपुट्स पे डाटा रिसीव हो रहा है, बट दे डोंट फिजिकली एग्जिस्ट, और टास्क परफॉर्म करते हैं और सॉफ्टवेयर में ही। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ आप वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, सो दीज आर दोज। देयर आर काउंटर्स अगेन, काउंटर्स भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, सिमुलेटेड होते हैं। आप काउंटर्स के ब्लॉक्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज देते हैं कि हमने किस तरह की काउंटिंग करनी है, एंड दीज काउंटिंग्स आर देन यूज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट के एक बॉटल फिलिंग प्लांट में आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आफ्टर 10 बॉटल्स जो है वो मोटर को 5 मिनट के लिए बंद करने हैं। सो काउंटिंग वहाँ पे ज़रूरी है कि 10 bottles have been filled up, now switch off the motor for 10 seconds, let's say. So this is where the counters come into place. PLC को physical counters नहीं चाहिए, there's just a block which we can use. Then there are timers. Timers also physically exist नहीं करते. They come in many varieties and increments. We'll see the in detail when हम timers को implement कर रहे होंगे. And the most common time is on delay, जिसका मतलब ये है, and then off delay, not retentive. बहुत सारे different तरह के exist कर रहे होते हैं, और different increments के साथ. Again physically exist नहीं करते, just part of the software. There are output relays जो कि outside world से connected है, physically exist कर रही हैं, और आप they give you can connect them with lights, solenoids, motors, etc. Data storage, typically they are registers assigned to simply store data, and they are usually used to as temporary storage for math or data manipulation. या अगर आपने let's say कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो you can use that data storage to proceed. PLC का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कैसे inputs क्या है? Input to PLCs are read by the processor and status of these input is stored in the memory. तो just like any other software, आप पहले कोई सॉफ्टवेयर अगर लिखते हैं तो आप
को रन करते हैं, ठीक है, तो चेक होता है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कोड इज स्कैन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपका जो कंपाइलर है वो पूरे कोड को एक दफा देखता है। सो पीएलसी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई डिफरेंट काम नहीं होता। सो इनपुट स्कैन क्या करता है कि जो भी पीएलसी की इनपुट्स प्रोसेसर रीड कर रहा है उनका वो स्टेटस चेक करता है कि कौन सी इनपुट इस वक्त कौन से स्टेटस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट द कंट्रोल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्कैन, जिसका मतलब है कि आपने अब कंट्रोलर प्रोग्राम कंट्रोल कर लिया है, आप उसको फिर रन करते हैं। The input value stored in the memory are used in the control, जिसका मतलब ये है कि you are now running the program. And finally during the output scan the outputs are updated to agree with the calculated value. और output scan में जब आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम को और outputs देख रहे हैं, the time performed to scan is called as the scan time. तीनों को मिला के जो भी टाइम बनता है, which means input program and output scan का combined time is known as the scan time, and this depends on the number of inputs that have to be read, complexity of the control functions, and the number of outputs that needs to be changed. Typically ज़्यादा time नहीं होता, it's a fast processor that is attached, so 1 to 25 milliseconds. Additional capabilities पे अगर हम आ जाएं तो they look into arithmetic functions, metric functions, data processing and reporting, which a PLC can also handle. एक minute, I think the slide has not shifted. Just a second. What is the slide that is currently on display on your screens? Additional capabilities. Huh? Additional capabilities वाली slide. Okay. ठीक है. Additional capabilities of PLCs में there is analog control. So PID control available है अगर आपने उसको implement करना है. There are arithmetic functions like I said कि आप addition, subtraction, multiplication, division को कर सकते हैं. There are matrix functions जिनको आप use कर सकते हैं. And then there is data processing and reporting as well. But ये functions again like I said earlier कि आप कंप्यूटर में भी ये सारे काम कर रहे होते हैं. तो PLC is not computer. Please remember this. It's just a efficient switching device जो कि कंप्यूटर की कुछ कैपेबिलिटी को कैच करता है और परफॉर्म कर रहा है. But it is not a very powerful डिवाइस जो कि आपके बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेगा. एज लॉन्ग एज इट्स जस्ट स्विचिंग्स एंड सीक्वेंसिंग को आपने करना है, पीएलसी वुड बी एबल टू हैंडल दैट, बट बहुत कॉम्प्लेक्स को हम नहीं कहते. एज फार एज प्रोग्रामिंग पीएलसीज आर कंसर्न, तो पीएलसी को प्रोग्राम करने के भी फर्दर काफ़ी डिफरेंट तरीके एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज लैडर लॉजिक डायग्राम जिसके ऊपर हम प्राइमरीली फोकस करेंगे, जिसको हम डिस्क्रीट कंट्रोल कहते हैं. देयर इज आल्सो फंक्शन ब्लॉक डायग्राम विच इज अगेन ये कॉन्टिन्यूस कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में एक्चुअली आपको दोनों ऑप्शंस मिलती हैं. कई दफ़ा होता है कि कुछ लेट्स से कि स्विचेस ब्लॉक्स पड़ा हुआ है तो आप स्विच का ब्लॉक लेते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं, लाइट का ब्लॉक लेते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं. लाइक द diagram that I displayed earlier, जहाँ पे मैंने लैडर लॉजिक का एक ओवरव्यू दिया था, तो कैसे डिजाइन कर एम्बेड कर सकते हैं. देयर सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट, इस किस्म की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वी लिमिट आवरसेल्फ टू ladder logic diagram or ladder logic programming for PLCs only. So PLC resolves the logic of ladder diagram rung by rung, which means के एक एक करके it starts from, इसका जो स्कैन होता है हमेशा वो टॉप टू बॉटम होता है. और let me just wait, I think the slide is not shifted as yet. ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ वुड द पीएलसी स्कैन वुड अकर.
सो स्कैन जो है वो आपके पास हमेशा टॉप टू बॉटम होता है फॉर अ पर्टिकुलर रंग. आई हैव ड्रॉन द रंग्स हियर, अभी थोड़ी देर में फ्लैश हो जाएंगी. यूजुअली आउटपुट्स आर अपडेटेड बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ द इंटरनल रजिस्टर. इसका मतलब सो इट इज टॉप टू बॉटम, हमेशा जो है आपका सिस्टम स्टार्ट होगा टॉप टू बॉटम वर्क करना. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी नॉर्मल कोड में आपका जो सबसे पहले लिखा है आपने इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी. बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल के बीच में यू मे जंप टू अनदर इंस्ट्रक्शन या अनदर फंक्शन लाइक दैट. तो प्रोग्रामिंग में बिल्कुल वैसे हो जैसे हम ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर भी हम वैसे ही ऑपरेट कर रहे होंगे. सो इनपुट्स अगेन वही 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहले इनपुट स्कैन है, फिर प्रोग्राम स्कैन है और फिर आउटपुट स्कैन है. सो दिस इज हाउ दिस वुड वर्क. दिस इज जस्ट okay, let the slide come and then I discuss it. Okay, this is just a much more elaborated drawing of PLC. इसके different wirings हैं. So ये जो ऊपर आप नजर आ रहे हैं blocks, these blocks corresponds to your I/O modules, inputs और outputs. ये connected हैं आपकी PLC के साथ. PLC के बीच में you can see there are different memory registers that you can see जहाँ पे आप उसकी स्विचिंग्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है. सो मोर और लेस इट्स जस्ट सिंपली एक समझ लें स्विच बोर्ड है जिसमें आपने डिफरेंट वायर्स डाल दिए हैं और इफ एक इंटेलिजेंट वे में यू आर स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस. With this, I think let's take a break for 5 minutes. Are there any questions so far? Any questions? Okay, then I'll stop the recording. जी अच्छा नो मैम बोला. चलो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर and let's have a 10 minutes break. I'll start after 10 minutes. Thank you.